First of all, go with that program. Last lecture we were finding some errors, and we were not being able to like debug at that time why this error was actually coming. So I'll go with that program first of all. Search Indian postal codes. Okay. So whenever we integrate the Salesforce application with any third-party application, like in this case, what we did is like uh, we have integrated this with the Indian Postal Code API. That's one of the Java-based application, and we have make an integration with the Salesforce application. What we have developed, you know, with this. So, and we are calling this from the Salesforce environment. So whenever we do any sort of integration, first of all, because I wanted to pass few parameters between this application and to the Salesforce, the first thing ever is required is you should, in the remote site setting, you should add the URL. So as in step number one, we did the same thing. Let's go to the security controls. And here in the security control, we have a remote site settings. So I added this API of postal pin code and it has taken up to this only. So that's not an issue. So this API has been added inside the remote site setting. Now adding the in remote site setting means now we can exchange the parameter with this particular URL, with this particular website. We can we can exchange few of the parameters, right? That's the step number one. As a step number two, as in step number two, what I did is like, I first of all created a Visual Force page over here. I created a Visual Force page, and for that page, I even have written the controller class. Now, what was the missing, what was missing in the last lecture, why we were getting that error. There were two things actually. I later on I have debugged. There were actually two things due to which we were getting that error. I haven't make this list collection as public. That was the first thing. So because we are using this collection, we are using this list collection to transferring the values onto this particular table, onto this particular table, list LST branches, right? This particular table, what we are going to build over here is going to get the value from this particular collection. So any such collection where you are actually, this is not a local collection in that case, because I mean, the job of this particular collection is to store the value and later on transfer it, to the Visual Force page. So I even have made that as get set, but then last time I forgot to mention public keyword. That was the first thing. And the second thing was like, here, instead of using if statement, I required to use while statement. So these were actually two drawbacks. There were two bugs in that. That's the reason that program was not compiling. Now I have made that changes, I even have made those changes in your notes as well. Here also I committed the change, the while, and the second is I make this collection as public, right? So I'll be uploading this copy as well, but otherwise, because the session is being recorded, you can, the skill, what the changes required to do in the program. Otherwise, there is no change in the Visual Force page as such. Now, let me show you this. So let's enter any of the pin code. For example, if I enter 440024 and then I click the search button, so this is going to be get connected. This is going to be get connected with this API. It will pass what I entered, it will pass it over here, right? It will pass it over here, and it's going to get that response. It's going to get that response back. It's going to get that response back, like here the API is going to be hit along with this parameter 4400. That is what we have supplied it from the Salesforce. That is what we have supplied this from the Salesforce. So this API is going to get hit. This API is going to get hit along with this parameter, and this is what the raw response we are going to get, right? This is what that raw response we are going to get. What is that? Actually, we already have seen. I just wanted to make a revision. That's not an issue. So this is what that raw response what we have received.
Now, based on this, I have written the class that is going to parse this content, right? We have written a class where we have parsed this particular content, right? And according to the content, we have prepared our JSON parser, right? According to the response that what we are getting from here, we have like prepared our JSON parser class, and this is what the output what we were expecting, right? You can modify it with any example. Don't know whether this is a valid or invalid. 4444002, like it's going all this, right? And can anyone of you give me any sort of pin code? Can anyone? Okay, there's no. I mean, this is not a valid pin code, by the way. Yes, some Suhail has given me this. Let me copy and paste it over here. 440013. Right. So for that, we have received this response. We have received this response. Shubham is again giving me one of the pin codes. So let me copy and paste it. And for 442403, this is what I mean. This is the response what we are getting from the website. So guys, this was the error in the last program, and so now thing has been debugged, so you can go ahead and do this program. Now let me go with the next program. One more. I told you that I'm going to take two real-time use cases. First will be your uh, like your postal pin code API, how to hit that API and get the response back from that API. The second one would be weather map details. So let me first of all discuss the use case, discuss from where we are trying to capture the response and everything. And then we will be creating a class for that as well, right? We will be creating a class for that as well. See, there's a website called as Open Weather Map. There's a website called as Open Weather. So you actually require to create your login first of all, right? When you go to this website, over here, somewhere over here, you will be finding one link. You will be finding one link to register yourself. So for this integration, you actually requires to create your login. You requires to create your account into this website. So that's a pretty simple thing. It's like you just require to fill few things like your name, email ID, and something like that. And with that all details, you could create your login. So that would be your step number one. Because if you wanted to integrate with this website, you must be a registered member. Because actually, there's a concept of API key over here. There's a concept of API key. Whenever we transfer, let me show you that. What I'm actually training. So when you go to this website, you go to this website. This website provides the weather conditions. Okay, this you could pass the parameter like in few different ways. You could pass the name of the city name along with the state and the country, or simply you can enter the coordinates. You could even enter like you could enter the value of longitude and the latitude. Let me show you that as well. So if I go with that product collection and I go with this current and forecast APIs, okay. So current weather data. I'm just hitting that API document, nothing else. API docs. So here, here it's providing you. Here it would be providing you. I mean, the weather conditions. Here it would be providing you the weather conditions, right? With few different options. Like I can go with this built-in API request by city name. So here you would require to enter. I mean, in the request itself, you require to enter the city name along with your API key, or else what you wanted like city along with the state. Okay, city along with the state. There would be two parameters along with your API, like city name, state, and country along with your API. Even so in every request, in every request, okay, you could even enter with like by the city ID or the zip code. That is also possible with this. Otherwise, this also provides if you have the coordinates with you, if you know the coordinates of your city on your place, you could even enter the value of latitude and the longitude along with your API. So if we wanted, let me show you that this one example over here. For example,
I wanted to get I want to get the weather conditions of London. So I require to hit this API. So I'm copying this the same way what we did for the postal map. And here I require to enter my API key. Without API key, it would not going to give the response. Now for that API key, for getting that API key, you actually require to create a login over. So that I was explaining, that I was trying to explain you that when you first go to this website, weathermap.org, first of all, create your login. First of all, create your login. After that, you could get your, in your name is going to be highlighted. Could click on this My API keys. Could click on this My API keys, and there you could get. This was a default. I created one once again. So you could go with any. Even you could default copy the default one as well. That's not an issue. And yeah. So here I require to type my API, right? I've given my API over here. Now as soon as I press the enter, so this is what the response this is going to give. Let me copy and let's first of all manually parse this content to what are the kind of responses, how the responses it's actually generating. So oh, sorry, this is actually generating response like this. This is actually generating response like this. So coordinates. It's also giving you the value of longitude and the latitude. So that's really up to you ki how much portion of the response that you wanted to pass, right? This is up to you ki how much portion of the response you wanted to pass. It's actually giving the value in this ID equals to this, and then mains equals to cloud, description broken clouds, icons, base station, temperature. See, temperature it's actually giving in the form of Kelvin, 282.13. That's Kelvin. Feels like again this one is a temperature. So what we require to do is like we when we would display when we would display this onto our visual force page, we will do one thing. We will apply one formula from the Kelvin to degree Celsius conversion. Let me see what is that formula onto Google. I'll Google this. That's minus 273 something like that. Let me see the exact values. And then visibility, wind. So this is the whole response what you are getting. This is the whole response. This is the whole response that we are getting. See, I can do one thing. Okay, let me first of all, let me show you some. Let me show you the complete response, and then we will decide how much portion of this response we wanted to get display, how much portion we wanted to discard. Okay, how much portion of this we wanted to get display, and how much portion we would like to discard. So that's that's a lengthy response actually. That's a lengthy response. Let me show you first of all. Let's sunrise information, even the sunset, time zone, the ID. So actually this much of the response we are receiving, right? So when we wanted the weather conditions, whenever you enter the city name, this is what the JSON response that website actually replies to you, right? Now it's really up to us, it's really up to us, okay, how much the content, how much content of that JSON response we wanted to pass, and how much information we wanted to get displayed. तो ऐसा कुछ नहीं है कि जितना आया उतना पूरा का पूरा. It all depends on you कि how much portion of this response you wanted to pass. So what I will be doing is like we mostly want this information. We mostly want this information. Temperature, feels like, and minimum maximum pressure, humidity.
Apart from us, I mean, the longitude and the latitude values and all these informations, let's consider that is something which is irrelevant, what we required, if you even want, you can definitely pass that. That's not an issue, right? That's not an issue. For the previous program, for the postal code, I have shown you how we can pass the complete content, right? You can take that reference, and for this program, actually, I'm keeping this simple. So what I'll be considering over here is like, I'll be considering this response. I'll be considering this response like this only. From here, I'll be considering this program. Matlab, for my visual force page, I will be actually displaying only this much of the information. I'll be displaying only this much of the information, and rest other all information. Rest other all informations. What this response has get for you, we are going to discard that information. So this is in our hand. That's really in our hand. What we want, what we want. So I just wanted to pass this much of the content and display that, temperature feels like, temperature minimum, temperature maximum, pressure and humidity value. I wanted to display all these parameters of weather condition onto the visual force page, otherwise not. Right? So this is really up to us. I mean, I'm just trying to make the program as simple. If you want, you can definitely pass the whole content. Right? Okay. Chalo. So for this, let's create a program. See, whenever you create that program, I told you the step number one is to create a, there's no need to create the connected app. Yeah. First of all, what you require is like, as in step number one, you require to add it to the remote site setting and collect the required services. Okay. Check. So we first of all require, whenever we wanted to integrate, for the first thing what I require is to add. The first thing what I require to add this URL, the URL of this website, I require to add this URL. I require to add this URL to my remote site settings. I mean, if you wanted to hit this website, what is the URL? By the way, this is the URL, right? This is the URL. So I first of all require to add that into my remote site settings. Okay. So what I will be doing is like, I'll be copying this. I'll be copying this, and then I'll be pasting it onto, yeah, by city name. By city name, this is the URL. So I'll be copying this URL, and I'm creating a remote site setting for that. So this is what we already created. Let's go to back to the remote site setting, and let's create one new remote site setting that is for the weather forecasting website. I think we already had this weather app API. So with this name, I'm creating that. This name, I'm creating one more remote site setting, and let's first of all copy this. Let's see how much of the portion it's actually taking. So I'll be pasting this city name q equals to. So up to this, up to this, like what I deleted this because these two parameters, city names and the API ID, I'll be actually transferring this. I'll be transferring this from the program, right? I'll be transferring this from the program. So I'm deleting this much of the portion. I'm keeping this up to this particular portion, right? Or uske baad mein, let me save this. Let me save this. So we created an up to that portion it has only taken. That is not an issue over here. It's not going to show you any error. Now, with this program, I wanted you to understand one more concepts. I wanted you to understand one concept. See, I mean, this was step number one. This was my step number one to add it the remote site setting. And what you require to collect in the last program also. In the last program, I told you what do you require to collect? You require to collect actually few things. What are the endpoint URLs? What are the method type? This everything you should collect.
So same is the case with this program also. यहाँ पर भी अगर आप if you are trying to integrate, if you are trying to integrate this with Weather Map API, what are the things you require? You require the things like you should require the endpoint URL, the complete URL of endpoint. उसके बाद में कुछ parameters like city name I'll be transferring from the program. API keys, API keys. Like let me copy this API key from here. If this is my API key, let me copy this and paste it over here. Paste it over here. This is the API key. So what I wanted, and the method type is get. See, what I wanted over here is like, instead of giving this API into the parameter itself, into the URL itself, what we can do is there's something called as, there's a new concept called as custom labels. Custom labels. So what we can do is like, instead of giving everything onto the URL, instead of giving on everything onto the URL, what we can do is like we can create the custom labels and then we can supply the name of custom label over here. So this key, if let's consider that this is something which should be confidential and it should not appear onto your URL. It should not directly appear onto your URL like it's actually appearing over here. It's actually appearing over here. So if we wanted to keep this thing as a confidential, so whenever during integration, try to understand this concept, because this is the right time. Integration is the right appropriate time to discuss that. Custom labels. What is a custom label? What is the use of custom label? That's also one of the interview question. So see, whenever we are trying to hit any URL and if there is any such parameter that required to be given into URL, मतलब अभी मेरा ये जो key है API key, without giving that API key, I cannot fetch this response. I cannot fetch this response from the website. If I will not supply this API key, this website will not respond to my request. It will not give me this response. So giving this API key is very essential in the URL itself, in the response. But then I don't wanted to publicize this. I don't wanted to publicize this U and this particular key. I wanted to keep this secret. So whenever this is your requirement, understand this. This is a very important concept that we are learning. ठीक है, आज मैंने किसी की क्लास नहीं रखी, आज और कल सिर्फ आपकी क्लास रखी है. कल शायद नहीं पढ़ा पाऊंगा बिकॉज कल मॉर्निंग बिजी रहूंगा मैं, बट या. तो whenever we are hitting any web service and we are trying to supply some confidential kind of entities, if we are trying to supply some confidential type of kind of entities, so never give it directly. Never give it directly. Although we can understand कि अगर मैं यहाँ पे अपना API key नहीं दूंगा, if I won't supply this API key, this URL is incomplete without API key. This website is not going to deliver me that response. The response is not going to be get generated. So we must supply API key. But then how can we make it hide? How can we make it hide? There's something called as custom labels. We require to create the custom label. So instead of giving that, instead of giving that complete code, we can create a custom label and then we can make the use of that custom labels. So it's going to hide that parameter, right? That is what we usually do whenever we perform the integrations. So during the integrations, we never give the endpoint URLs or any other parameters, any other kind of key directly. Rather, we create a custom label for that. And this is absolutely real-time practice that I'm telling you guys. You might think this is very complicated, but this is how you will be actually working in real time. When somebody asks you why you are supplying this parameter directly, why haven't you created a custom label? तब आप क्या जवाब दो? Because in real time, that is what the thing we do. Whenever any required parameter needs to be get supplied, we always create a custom label for that, right? So I don't want it, right, कि आपको ये चीज पता ना हो. इसीलिए चलो तो हम लोग जो भी endpoint URLs होते हैं, like this is the URL, and if you wanted to hit this API, this is the URL. ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ इस पोर्शन तक अप टू दिस पोर्शन इतना ही अपने को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सिटी नेम और बाकी API की तो ये तो हम तो डायनामिकली देने वाले हैं. दिस इज नॉट स्टैटिक कंपोनेंट. वी आर गोइंग टू गिव दिस डायनामिक. लाइक API की जो है वो मैं कस्टम लेबल से दूंगा. सिटी नेम वुड बी डायनामिक. जब हम विजुअल फोर्स पेज में जब हम बनाएंगे तो यूजर को बोलेंगे कि चलो आपको यहाँ पे की एंटर करो, राइट? तो ये जो है अपना एंड पॉइंट URL और ये API की that I'll be creating inside two of the custom labels. So let me do that as well. So after remote site,
Let's go to setup, build and create. What you want to create? I wanted to create custom labels. We wanted to create custom labels, right? Here is the link. Just below application, there's a custom labels. And then new, create a new custom label. If the name has to be like, I already have that name. Copy this weather map API endpoint URL. Same would be the name. Value here you require to give the value. So value is I'm using this URL endpoint URL from here to the queue part. Up to this part would be the value of endpoint URL. Okay, weather map API endpoint URL. And let me save this. So now onward, wherever wherever in the program I require the endpoint and I require the endpoint URL, I mean this URL. I'm not going to type it directly जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में किया था. पिछले प्रोग्राम में मैंने इसको डायरेक्टली टाइप कर दिया था. डायरेक्टली आई हैव गिवन द वैल्यू endpoint here. Endpoint URL मैंने डायरेक्टली दे दिया था. But from this program and from this onward, that was the first program, so I wanted to keep it simple. लेकिन अब एक प्रोग्राम होने के बाद अब थोड़ी सी डिफिकल्टी बोलिए ये या एक्चुअल रियल टाइम की प्रैक्टिस जो है वो मुझे बतानी पड़ेगी आपको. बिकॉज रियल टाइम पे वी नेवर हार्ड कोड एनीथिंग. रियल टाइम पे वी नेवर हार्ड कोड. We rather always create the custom labels for that. We always create the custom labels for that, right? That is why in our case, for now, for today, whenever we are, wherever we require to supply the endpoint URL, we will be making a use of this endpoint. और इसका देखो एक चीज और फायदा भी मिलता है. इसका एक फायदा भी मिलता है. अगर मान के चलो कि आपके प्रोग्राम में फॉर योर इंटीग्रेशन यू हैव रिटन 10 क्लासेस. एक अजम्पशन है मेरा कि फॉर योर इंटीग्रेशन विद दिस वेदर मैप एपीआई यू हैव रिटन 10 क्लासेस. ऐसा एक मान के चलिए आप. एंड इन ऑल 10 क्लासेस इन वन क्लास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग की जहां पे मैं 2 बार एंड पॉइंट यूआरएल सप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग की मेरी जहां पे हर क्लास में मैं 2 बार 2 मरतबा एंड पॉइंट यूआरएल सप्लाई कर रहा हूँ. मतलब एक क्लास में 2 बार तो 10 क्लास में 20 बार सप्लाई कर रहा हूँ, राइट? अब किसी वजह से लेट्स कंसिडर कि वेदर मैप एपीआई अपना एंड पॉइंट यूआरएल चेंज करता है बिकॉज ये थर्ड पार्टी है. ये जो चाहे वो कर सकता है. मतलब ये हमको इन्फॉर्म करता है कि प्रीवियसली इफ यू वांटेड टू एक्सेस द वेदर, so this was the URL, but now we have made recent updations in our system. So this API, this particular URL will not going to work from anymore, and you require to follow this URL. ऐसे एक assumption मान कि from now onwards, from today onward, this API becomes null and void. And if you wanted to if you wanted to access the weather conditions, you require to go with this new URL. अब अगर मैंने डायरेक्ट यूआरएल्स डाल रखे हैं जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम में किया है और 10 क्लासेस में 20 जगह मुझे हर जगह जाके चेंज करना, राइट टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी विद दिस प्रोसेस. उसमें भी अगर कहीं एक आध जगह छूट जाता है तो फिर गलत हो गया. योर प्रोग्राम विल गोइंग टू शो यू द एरर्स, राइट? उसके बजाय अगर ऐसा ना करते हुए जो रियल टाइम की प्रैक्टिस है, यू क्रिएटेड वन कस्टम लेबल. ठीक है, विथ यू क्रिएट वन कस्टम लेबल और आपने उसको यूज कर रखा है 20 जगह. यू जस्ट रिक्वायर टू रिप्लेस दिस विद दैट नया यूआरएल. एक ही जगह चेंज कर दो, बस एक जगह चेंज कर दो, सेव कर दो. और हर जगह जहां पे वो 20 जगह, वो 20 प्लेसेस वेयर एवर इन द प्रोग्राम जहां मुझे एंड पॉइंट यूआरएल लग रहा था, मैंने यहाँ पे इसका नाम दे रखा था, ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि आपने एपीआई कहाँ चेंज किया, एंड पॉइंट यूआरएल कहाँ चेंज किया है? कस्टम लेबल पे, ना कि प्रोग्राम. ये दो बहुत मेजर बेनिफिट्स होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. So we never hard code, right? Endpoint URLs, any such key, parameters, whatever. We never hard code it inside the program. We always create a custom label for that, and wherever that endpoint or whatever is required. So we will be passing the name system.custom label से pass करना पड़ता है. इसको कैसे बताऊंगा मैं प्रोग्रामिंग में, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप कस्टम लेबल क्यों यूज कर रहे हो. तो ये जो दो मेजर चीजें बताई मैंने आपको फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. एंड द सेकंड वाज लाइक इन द 20 प्लेसेस इफ फॉर एग्जांपल आई रिक्वायर टू गिव द एंड पॉइंट URL at 20 different places, and if I am hard coded that, so what's going to be happen कि मुझे वो सारी 20 जगहों पे जाके चेंज करना पड़ेगा. Instead of that, if I have created a custom label, so I just require to edit it in a single place. मतलब यहाँ पर आके मुझे चेंजेस करने हैं इसकी वैल्यू, and it's going to be get one second.
So that's going to be get reflected in every 20 or every 40, every 100 place wherever you have used that particular custom label. So that's the very biggest advantage of this, right? चलो, तो ये पहला custom label था और I require to create one more custom label for entering my key, my API key. The name what I have given that, let me copy and paste it here. Weather map API key. So with this name and my API key is this, so I'm copying this value. This is the value and let me save it. So, okay. So I created two custom labels over here. Again, step number one, remote site setting done. Step number two, endpoint URL and my key. I'm managing it from the custom label. So I created two custom labels. Now from step number three onwards, I'll be designing that Visual Force page as well as the business logic class. Right? I'll be doing that as well. I'll be doing that as well. So let me go with what is the name? Show weather map controller. So let me now create a Visual Force page. Apex. Instead of giving the name as the controller, we always give the name as the page. So I'm creating this page. Okay, I'm creating this page. There's no such page with this name. There's no such page with this name. So I'm creating one page for that. So I'm creating one page for that. Right. Yes. So let's remove this default content what we always get with. So Apex page. What I'll be doing is like I'll also be creating one. I'll be creating one controller as well for that. Right. Creating one controller. So Apex page and in the controller I'm giving this controller. Okay. So it will be obviously it's obviously going to prompt you one error कि इसके नाम से कोई controller नहीं है तो हम create कर लेंगे, right? अच्छा उस दिन I have found कुछ difficulty थी synchronization में. If you remember that day when I created the controller and I was trying to open the same controller from your developer console. So that time it was not showing us. तो उस दिन कुछ ना कुछ डिफिकल्टी चल रही थी बट वो डिफिकल्टी अपने प्रॉब्लम से कुछ नहीं था वो तो मेरा अपना बग था बट देन आई फाउंड इट मुझे याद आ रहा है कि उस दिन कुछ डिफिकल्टी थी चलिए एनीवे सेटअप और setup equals to false. I don't want it to display setup in the left corner. Sidebar even I don't want it to display to false. Or show header, yes, I of course I wanted to show the header. So show or what else? Yeah, show header को true ही रखते हैं अपन. And tab style ले लेते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट का जैसे एक हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है ऑर्डर तो मैं उसका भी टैब स्टाइल लेता हूँ या कुछ टैब स्टाइल ऑर्डर का भी ले सकते हैं या फिर ठीक है ऑर्डर ही ले लो चलो ओके सो up to this like up to this I created उसके बाद if I'll be saving this तो ये मेरे को एक एरर प्रॉम्प्ट करेगा कि इस नाम से कोई क्लास नहीं है so let's create a class for that as well so this is the class what we have just created और ये क्लास पे हम काम करेंगे डेवलपर कंसोल से like हम इस पे काम करेंगे डेवलपर कंसोल से so what I was trying to say is like if you remember कि ऐसा करने के बाद में मैं जब डेवलपर कंसोल पे गया था that day we were not finding that class we were not finding that class तो मुझे कुछ सेव करना पड़ा था कुछ क्रिएट करना पड़ा था ऐसा कुछ हुआ था होता है कभी कभी देखो ऐसे भी इश्यूज होते हैं अरे I am not supposed to create a class rather I require to find that class 1 second guys hello हाँ
Okay, so the class what I created here the show show weather details. This is the class. ठीक? देखो अभी जितना वहां क्रिएट किया ना उतना यहाँ पर भी आ जाता है. So this was something which was not synchronizing that day if I remember. Anyways, चलो ठीक है. तो एक बेसिक पेज जो है जब तक उतना बना लेते हैं बाकी फिर पहले क्लास में चलेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. So after this we always require to create section header. So apex and then section header. Give the title as weather and subtitle as weather details. Okay, subtitle has to be weather details like this. After that, we always require to open a form. So apex and then form. Whatever we code inside is a form. In the form, we always open a page block. So apex page block. Apex page block. Okay. In the page block, let's enter few of the things like title equals to for example VATHL weather detail block, weather detail block. Okay. And then within this let me open a page block section. So a page block section. Okay. Apex page block section. And then let's enter few properties inside the page block section as well. So title would be search. Search weather details. Yeah, let's go with this. And then uh, after this, let's columns columns. Columns would be like in the two columns. I'll be displaying that एक column एक जगह और button उसके दूसरे columns में. Collapsible collapsible. Collapsible. I wanted to make it false. I don't want it that to be collapsible. Let me save up to this and see how does the interface actually looks like. पहले इतना करके देख लेते. पहले इतना करके देख लेते. ठीक है. ठीक है. Now let me introduce one text area over here और एक button. दो चीजें अब मैं यहाँ पे दो चीजें जो है यहाँ पे. So after this inside your page block section. After this inside your page block section, let's now give apex input text. Yeah. Apex input text will label equals to enter city name. And if you wanted to give the HTML placeholder as well, so that also we can give placeholder HTML placeholder equals to city. ठीक है. What I'll be doing is like इसकी जो वैल्यू रहेगी मैं लेता हूँ उसको पहले अभी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है तो अभी इसको एज इट इज छोड़ता हूँ उसके बाद में apex in the second column I would like to introduce that button एक बटन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ so apex command button. ठीक है. apex command button the value apex command button the value would be like show weather conditions. शो वेदर कंडीशंस. ठीक है. और उसके बाद एक्शन क्या रहेगा तो हम पहले जब हम लोग ये क्रिएट कर लेंगे ना मेथड क्रिएट करेंगे तब हम एक्शन ऐड करेंगे. यहाँ पे एक्शन ऐड करना है यहाँ पे वैल्यू ऐड करना है. ठीक है. फिलहाल मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ. टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट अनसपोर्टेड एचटीएमएल की स्पेलिंग गलत है. एचटीएमएल प्लेस होल्डर. So this is the interface जो अभी बन के तैयार है अपना. This is what the kind of interface. Here would be entering
हम जैसे यहाँ पे वी आर एंटरिंग नागपुर एंड देन वी विल हिट द सेव बटन, हम ये बोलेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं नीचे एक टेबल बनाऊंगा, और टेबल में जो कॉलम्स रहेंगे, टेबल में जो कॉलम्स रहेंगे, दैट वुड बी दैट वुड बी लाइक, ये जो हमने अभी पैरामीटर्स को क्रॉस वेरीफाई किया, मतलब ये सब रहेगा, टेम्परेचर, फील्ड्स, है ना, टेम्परेचर में ये सारे कॉलम्स रहेंगे। तो इसी इसी से रिलेटेड मैं जो क्लास बना रहा हूँ, उसी से रिलेटेड मैं उसके अंदर वेरिएबल्स भी बनाऊंगा, तो यही वाले बनाऊंगा। ठीक है, ऐसा। तो जो हम टेबल बना रहे हैं अभी इसके नीचे, यहाँ पर हम एक टेबल फॉर्म करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल पिछले प्रोग्राम की तरह, और उसमें ये सारे वैल्यूज रहेंगी, कॉलम, टेम्परेचर, फील्ड्स लाइक, टेम्परेचर मिनिमम, मैक्सिमम, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही काम करते हैं इस पे, और फिर इसके बाद जो अभी कोडिंग करनी है, पहले काम करते हैं कोडिंग, जो है वो पूरा निपटा डालते हैं। कंट्रोलर क्लास पे चलते हैं, जो कि मैंने डेवलपर कंसोल पे ओपन कर रखी है, और यहाँ पे फिर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, मतलब ये जो यहाँ पे यूजर एंटर करेगा ना, इसके अंदर जो यूजर एंटर करेगा उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है, उसको कैप्चर करने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। सो पब्लिक स्ट्रिंग सिटी नेम, सिटी नेम, ठीक है, and I'm making this variable as what, get set. Why get and set? Because we wanted this to be, we wanted this variable value to be get synchronized with your uh, visual force page. And so here, I'm adding one property, value equals to in the double inverted comma, and then this and this within this city name. Okay. So whatever user will going to enter over here, okay, whatever user will going to enter over here, that will be transferred to this particular variable. That's why we have defined this variable as what, with the getter and setter method, right? With the getter and setter method. Okay. एक टेम्पररी वेरिएबल डिफाइन बाद में कर, चलो छोड़ो। उसके बाद में let's now define the variables oblique properties of the weather response we need to display on VF। अब VF में क्या क्या डिस्प्ले करना चाहते हो, राइट? तो उसके हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ इतनी चीजें डिफाइन करेंगे, है ना, वी विल बी डिफाइनिंग, हम सिर्फ इतनी ही वैल्यूज देने वाले हैं, इतनी वैल्यू देने वाले, राइट? तो उसके हिसाब से फिर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर, सो टेम्प वुड बी, आई थिंक इट इज एवरेज टेम्परेचर, मिनिमम मैक्सिमम टेम्प, ठीक है, तो हाँ, मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, तो ये ऑब्वियसली एवरेज टेम्परेचर होगा शायद। सो इसका वैल्यू जो है इट्स लाइक 288.3, डेसिमल नहीं लेता इसको, डेसिमल नहीं लेता। एक काम करते हैं, सारे स्ट्रिंग से कर लेते हैं, स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग में सारे अलाउड रहते हैं, स्ट्रिंग में सारे अलाउड रहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट, स्ट्रिंग से लेता हूँ, अगर एरर मिला तो डेसिमल लूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ स्ट्रिंग से ले लेता हूँ। पब्लिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल average temperature, and let's make this as a getter and set method as well, so यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हर वेरिएबल, वट एवर द वेरिएबल यू आर डिफाइनिंग, इसके पहले हमें दूसरी क्लास में लिया था, ये वो एक्चुअली बना चुके थे, इसलिए मैंने उस क्लास को यूज कर लिया था। अभी मैं एक ही क्लास रख रहा हूँ, सारी चीज जो है वो मैं इसके अंदर ही ले रहा हूँ। So public string this, and then the next is public string. What is the next? Feels like. Feels like. Feels like. Okay. And get and set. After that, for example, public string after feels like temperature min. So min temp min temp. ठीक है. Min temperature and get and set. After that, public string
max temperature. Okay, so it would be like, max max temperature, and then max temperature would also be get and set, and then public string. Next is pressure get and set, and then public string humidity, humidity. So get and set. So I have defined all these variables. So I have defined all these variables, right? According to the response. According to the response, what we are expecting from the website. So we have defined all these variables. Okay. So now after this, create the business logic inside a method. ठीक है. यहाँ पर यहाँ पर मैं यहाँ पर एक मैं बिजनेस लॉजिक क्रिएट कर रहा हूँ मेथड के जरिए, और वही मेथड को मैं कॉल करूंगा जब कोई बटन हिट करेगा. ठीक है, वही मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करूँ. तब यहाँ पे कमांड बटन पे एक एक्शन प्रॉपर्टी अपनी बची हुई है, राइट. एक्शन प्रॉपर्टी अभी बची हुई है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर एक मेथड बना रहा हूँ. सो पब्लिक void get the weather details, DETAILS, weather details. ठीक है. So with this name I'm actually uh, creating the method. Okay, with this name I'm creating the method. चलो. So what I will be doing is like, अब ये जो है ये कॉल होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं एक्शन प्रॉपर्टी लेता हूँ यहाँ पे. I'll be taking that action property के अंदर में I'll be giving the name of get weather details. ठीक है, एक्शन प्रॉपर्टी के अंदर मैं नाम दे रहा हूँ get weather details. कि when someone actually hit that, right, जब कोई उसको हिट करता है, ये जो पर्टिकुलर आपका मेथड है, दैट मेथड शुड बी गेट कॉल्ड. बराबर. और पेज उसको री रेंडर वगैरह. ठीक है, फिलहाल इतना ही रहने दो. अभी इतना ही रहने दो, बाद में देखते हैं. ओके. चलो, इसके बाद में आई एम कमिंग बैक टू दिस. इसको भी एक बार सेव कर लेता हूँ. create the apex method show weather details. Show weather, get weather details also. Okay, I think I haven't saved this. हाँ, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया, इसलिए उसको मेथड नहीं मिला. ओके, लेट मी नाउ सेव दिस. हो गया. तो मैं सेव नहीं किया था यहाँ पे. मैं सेव नहीं किया था, तो ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस मेथड, लेकिन उसको मेथड मिल ही नहीं रहा था. अभी मैंने सेव कर दिया तो मेथड मिल गया. यस. चलिए, इसके बाद में चलो अब नाउ हाउ यू हैव डन द लास्ट प्रोग्राम. आपने पिछला प्रोग्राम कैसे किया था. चलिए एक थोड़ा सा रेफरेंस. प्रोबेबली विद दिस डिस्कशन यू विल फाइंड कि यार इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, प्रोबेबली. तब ऐसा मैं सोच रहा हूँ. आफ्टर दिस एवरीथिंग हैज बीन डन, आफ्टर एवरीथिंग हैज बीन डन, आपने एंड पॉइंट यूआरएल वगैरह से स्टार्ट किया था. ठीक है, आपने एंड पॉइंट यूआरएल वगैरह से स्टार्ट किया था, ऐसा ही कुछ. उसके बाद ये सेम चीज है, एसटीपी पोस्टल जो भी था आपका. फिर पहले आपने एसटीटीपी क्लास का एक वेरिएबल डिफाइन किया. उसके बाद में आपने रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के वेरिएबल डिफाइन किया. रिक्वेस्ट के अंदर आपने एंड पॉइंट यूआरएल सेट मेथड जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो सारी चीजें आपने इसके अंदर दी. ठीक है, वो सारी चीजें आपने दी. मोस्टली तीन ही चीज रिक्वायर्ड रहती वो. उसके बाद में फिर आपने रिक्वेस्ट को सेंड किया. पोस्टल रिक्वेस्ट को सेंड किया तो रिस्पांस देगा. तो रिस्पांस कहाँ जमा किया आपने. आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया एचटीटीपी रिस्पांस को, उसके अंदर आपने सारा रिस्पांस जमा किया. और उसके बाद में जब आपको रिस्पांस जमा हो गया, ठीक है, जब जमा हो गया, तो फिर उसके बाद में व्हाट यू डिड इज लाइक, उसके बाद में फिर आपने पोस्टल रिस्पांस, हमने एक जो है एक नहीं, इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, इसकी जरूरत नहीं है. या नहीं, इसको ले लेता हूँ मैं. एक ले लेता हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि मुझे एपीआई प्रॉपरली हिट हुई है या नहीं. तो ठीक है, मैं मेरे प्रोग्राम में फिर थोड़े से चेंजेस करता हूँ यहाँ पे.
व्हाट आई विल बी डूइंग, यानी कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर, एक टेम्पररी वेरिएबल डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, जिसकी मुझे जरूरत सिर्फ ये देखने के लिए है कि मेरी एपीआई जो है वो ठीक तरह से हिट हुई कि नहीं हुई। सो वेदर रिस्पॉन्स, RESPONS, weather response JSON, and let's make this as get and set. So get comma set, ठीक है। इसका काम क्या है मैं बताता हूँ, इसका काम क्या है बताता हूँ। एक टेम्पररी वेरिएबल है सिर्फ एपीआई हिट हुई कि नहीं देखने के लिए, उसके बाद में फिर मतलब रिस्पॉन्स आया कि नहीं, एपीआई हिट हुआ और रिस्पॉन्स आया तो वो यहाँ जमा कर लेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्स को पास करेंगे अपन, ठीक है। चलो, सो इन दैट लाइक prepare the required input to hit the API. API अगर आपको हिट करनी है तो वॉट एवर यू रिक्वायर जस्ट प्रिपेयर दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड पॉइंट है ना, स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिफाइन करा, स्ट्रिंग एंड पॉइंट यूआरएल, ठीक है। स्ट्रिंग एंड पॉइंट यूआरएल इक्वल्स टू, अभी इसके पहले देखो, इसके पहले प्रोग्राम में मैंने डायरेक्ट दे दिया था, है ना, इसके पहले के प्रोग्राम में वी हैव गिवन इट डायरेक्टली, अपन ने एंड पॉइंट यूआरएल ऐसे वहां भी वेरिएबल डिफाइन किया और अपन ने डायरेक्टली दे दिया उसमें। अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, आपका जो यूआरएल है, ठीक है, आपका जो यूआरएल है, इफ दिस इज योर यूआरएल तो अप टू दिस पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोर्शन मैंने कहाँ पे स्टोर कर रखा है, ये पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमने कहाँ स्टोर कर रखा है, हमने एक कस्टम लेबल में स्टोर कर रखा है जिसका नाम है वेदर मैप एपीआई एंड पॉइंट, है ना, ये उसका नाम है। तो हम कभी भी डायरेक्ट नहीं देते हैं इसको, अभी मैं आपको नई चीज बताया आज यहाँ से, आज से आपने कुछ नया एक्चुअल रियल टाइम पे जो हम करते हैं वो बेसिकली मैंने आपको बताया, राइट, वो बेसिकली मैंने आपको बताया। तो मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट यूआरएल डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दैट इनटू माय प्रोग्राम, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वही मैं ड्रॉबैक की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहां मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 20 क्लासेस, 10 क्लासेस, हर जगह में दो जगह डाल रखा है। सो इफ यू आर हार्ड कोडिंग दैट, तो कल चल के कभी बदलाव आते हैं, अगर कुछ चेंजेस आते हैं वो थर्ड पार्टी वेबसाइट के यूआरएल पे, so for all those 20 places you I mean you personally required to visit all those 20 places in 10 classes and there you require to make the changes। उससे बेहतर तरीका था जो हमने आज सीखा कि we create a custom label for that, right, and we would be making changes only to that label। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि in my program here I wanted to give the name of URL, वो तो यूआरएल कहाँ रखा है आपने, लेबल में, तो लेबल को लेने के लिए, है ना, लेबल को लेने के लिए सिस्टम डॉट ओके नहीं दे रहा, कोई बात, सिस्टम डॉट लेबल इज दैट कमांड, सिस्टम डॉट लेबल इज दैट कमांड, और यहाँ पे देना पड़ता है आपको उस लेबल का नाम जो आपने बनाया है। सो मैंने इस नाम से बनाया है तो मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, ये हो गया, ये यहाँ तक लेबल आ गया, system dot label, ठीक है। system dot label is I mean the way you could fetch the name of that particular label। अच्छा, अब यूआरएल सिर्फ इतना नहीं है ना, यूआरएल सिर्फ इतना नहीं है, इसके साथ में आपको क्या देना है, ये तो क्यू हो गया, अब इक्वल्स टू तक हो गया ये यहाँ तक, इसके बाद में आपको देना है सिटी नेम, ठीक है। इसके साथ आपको क्या देना है, आपको सिटी नेम देना है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ में अभी प्लस प्लस व्हाट आई वांटेड टू गिव सिटी नेम, सिटी नेम मैंने एक वेरिएबल में कैप्चर करना है, आई एम कैप्चरिंग दिस इनसाइड दिस वेरिएबल सिटी नेम, ये मैं इसका नाम देता हूँ प्लस सिटी नेम, ठीक है। प्लस प्लस व्हाट अगेन यू वांटेड टू गिव एपीआई की देना है, इसके साथ साथ आपको दूसरी जो चीज देनी पड़ती है वो है आपका एपीआई की। एपीआई की के लिए भी फिर से आपने एक कस्टम लेबल बना रखा है ना, एपीआई की के लिए भी आपने फिर से एक कस्टम लेबल बना रखा है यहाँ पे, एक थोड़ा सा गलत हो रहा है, एंड ऐप आईडी इक्वल्स टू, ये भी है यूआरएल, ये भी कॉपी करना पड़ेगा मुझको, क्यू इक्वल्स टू तक हो गया, सिटी नेम एंड एपीआई आईडी, सिटी नेम प्लस यहाँ पे इन द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड एपीआई आईडी प्लस, हाँ ऐसा यूआरएल, जैसा यूआरएल है वैसा ये होना चाहिए, एंड एपीआई आईडी जो है वो मैं इसके अंदर लिख दिया, एंड प्लस, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मुझे चाहिए मेरा एपीआई की, जो कि मैंने एक इस एक कस्टम लेबल बना रखा है, तो फिर से मुझे यहाँ पे कस्टम लेबल चाहिए, तो कस्टम लेबल के लिए आप फिर से वही टेक्निक जो मैंने बताया, सिस्टम डॉट लेबल डॉट वेदर मैप एपी एप्लीकेशन की, है ना, वेदर मैप एप्लीकेशन की, राइट। सो दिस इज माय कंप्लीट एंड पॉइंट यूआरएल, दिस इज माय कंप्लीट एंड पॉइंट, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है,
कि आपने यहाँ पे एंड पॉइंट यूआरएल पूरा नहीं दिया, बट यू हैव यूज द नेम्स ऑफ योर कस्टम लेबल्स। नाउ इफ समथिंग चेंजेस ओवर देयर, तो आपको यहाँ नहीं विजिट करना, यू डोंट रिक्वायर टू विजिट द क्लास, क्लास लेवल पे जाना ही नहीं है आपको, ठीक है, यू डोंट रिक्वायर टू विजिट द क्लास। what you can do is like you can directly go to that custom label, आप वहां जाके वो चेंजेस कर दो, आप वहां जाके वो चेंजेस कर दो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कस्टम लेबल्स, एंड इन रियल टाइम इंटीग्रेशन वी ऑलवेज यूज कस्टम लेबल्स, हमेशा याद रखो, ठीक है। और मैं तुमको बिल्कुल उसी तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ, शायद तुमको टफ लग सकता होगा, लेकिन लगने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको कि अगर तुमको ये थोड़ा सा टफ लगता है। ऐसा कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन जो एक्चुअली यूज करते हैं अपन वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, उससे कुछ अलग मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा एंड पॉइंट यूआरएल, ठीक है, एंड पॉइंट यूआरएल। अब ये हो गया है आपका नाउ प्रिपेयर एचटीटीपी क्लासेस। अब जो एचटीटीपी क्लासेस हम इसके पहले बनाते हैं वो सारी प्रिपेयर करो। तो सबसे पहले आपको जो बेस क्लास है, मदर क्लास, फादर क्लास, पेरेंट क्लास, वट, ठीक है, एचटीटीपी वेदर है तो डब्ल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, बस उसका ही नाम है एच टी टी पी, एच टी पी ऑब्जेक्ट का नाम है तो कुछ भी लो, इक्वल्स टू न्यू एच टी टी पी। ये कौन है? ये आपका पेरेंट क्लास है, और ये पेरेंट क्लास का वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद एच टी टी पे आओ, एच टी टी पी रिक्वेस्ट जो क्लास है, एच टी टी पी रिक्वेस्ट क्लास, ठीक है, उसका भी एक नाम दो, डब्ल्यू रिक्वेस्ट या वेदर रिक्वेस्ट कर लो इसको, तो ये टी एच वेदर रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है, और इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर दो। चलो, ये हो गया आपका इसका वेरिएबल। अब ये बन गया है, तो इसके अकॉर्डिंग में फिर बाकी इसके साथ में, मतलब ऑब्जेक्ट नेम के साथ में हम बाकी के पैरामीटर्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम के साथ में हम बाकी के पैरामीटर्स जो है ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि वेदर रिक्वेस्ट डॉट सेट एंड पॉइंट यूआरएल, सबसे पहला, ठीक है, सेट एंड पॉइंट यूआरएल। तो एंड पॉइंट यूआरएल आपने एक एक वेरिएबल में पहले से स्टोर कर रखा है, तो उसका नाम यहाँ पे दे एंड पॉइंट यूआरएल, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट ठीक है, डॉट सेट मेथड, सेट मेथड, तो मेथड इज एक्चुअली गेट, मेथड जो है हमेशा लेने के लिए ना गेट ही मेथड है, गेट और पोस्ट क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। द मेथड इज गेट एंड यू रिक्वायर टू गिव इट इनटू द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, गेट मेथड है, ठीक है, मेथड इज ऑलवेज गेट, एंड देन सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, तो आई कैन गिव लाइक 6 सेकेंड्स अगर देने हैं तो 60,000 होता है, वंस टेंस 100,000 10,000 60,000, ठीक है। ये हो गया मेरा रिक्वेस्ट क्लास बन के तैयार हो गया, ठीक है, रिक्वेस्ट क्लास बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद में रिस्पॉन्स, आपको इसको थ्रो करने का है, रिक्वेस्ट को थ्रो करने का है, तो व्हेन यू आर थ्रोइंग दैट रिक्वेस्ट, तो आप रिक्वेस्ट थ्रो करेंगे डब्ल्यू एच टी टी पी, ये जो आपने बना रखा है इसकी मदद से, डॉट सेंड, ठीक है, डॉट सेंड, एक मिनट, 1 सेकेंड, चलो, तो जो रिक्वेस्ट अपन ने बनाई है उसको अपन सेंड करते हैं, ठीक है, जो रिक्वेस्ट अपन ने बनाई है उसको अपन सेंड करते हैं। तो एच टी टी पी वेरिएबल डॉट सेंड, सेंड करनी है रिक्वेस्ट, ठीक है, सेंड क्या करनी है आपने, रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो रिक्वेस्ट कहाँ पर है आपकी, ये वेरिएबल में है, इसको कॉपी करके पेस्ट करो। देखो, अब पिछले प्रोग्राम के कंपैरिजन में, मतलब ये मेरा अजम्पशन है कि आपको अब थोड़ा सा ये मैनेजेबल लग रहा होगा, इजी नहीं तो शायद मैनेजेबल लग रहा होगा, और आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो ये खुद ब खुद इजी हो जाता है। पिछले प्रोग्राम में, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम, अपन थोड़ा सा डर गए होंगे कि ये क्या है, शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 से 2 प्रोग्राम, 2 से 3 प्रोग्राम जैसे ही तैयार होते हैं ना, ये सब चीजें अपने आप तैयार हो जाती हैं दिमाग में, और सब ऐसा वन बाय वन है ना, स्टेप बाय स्टेप है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग जब पहली बार पढ़ते होंगे, तो वो जो टैग हायरार्की जब मैं पढ़ाता हूँ, तो वो थोड़ा सा सभी को टफ लगती है कि अरे यार ये थोड़ा सा मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे आप लिखना शुरू कर देते हो तो आपको खुद ब खुद याद हो जाता है। तो बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर भी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये एक्चुअली,
थोड़ा सा समझ के लेना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। अब ये जो रिस्पॉन्स आएगा, जब आप ये सेंड कर रहे हो, जब आप ये सेंड कर रहे हो तो रिस्पॉन्स आएगा। तो रिस्पॉन्स आएगा तो उसके लिए आपके पास जो क्लास है HTTP रिस्पॉन्स क्लास, उसका एक वेरिएबल बनाओ। जैसे मैंने वेदर रिक्वेस्ट बनाया तो वेदर रिस्पॉन्स बना लेता हूँ, वेदर रिस्पॉन्स, ठीक है। इस वेरिएबल में है, मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ और इतना कोड पहले सेव कर, इतना कोड सेव कर लेता हूँ। चलो अब जो रिस्पॉन्स आया है ये चेक करने के लिए कि रिस्पॉन्स मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैंने एक वेरिएबल बना रखा है। पहले इतना इनिशियली इतना पोर्शन करेंगे, फिर हम उसको पास करने पे जाएंगे। तो आफ्टर दिस रिस्पॉन्स आया कि नहीं, ठीक है, वो चेक करने के लिए दिस डॉट गेट बॉडी रिस्पॉन्स, ये जो रिस्पॉन्स इसमें है, रिस्पॉन्स इसमें है उसका गेट बॉडी, ठीक है, उसका गेट बॉडी फिलहाल इतना रखते हैं। एंड आई विल डू वन मोर थिंग, ये जो वेरिएबल है रिस्पॉन्स जिसमें आया है उसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, इसको मैं कॉल करता हूँ। तो इसके लिए एक नया पेज ब्लॉक बनाते हैं, इसके लिए एक नया पेज ब्लॉक बनाते हैं, जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पिछले प्रोग्राम जैसा ही कर रहा हूँ। एक दूसरा पेज ब्लॉक अपेक्स पेज ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पर, और उसका नाम देते हैं अपन टाइटल इक्वल्स टू WEATHER वेदर डिटेल्स फॉर, यहाँ सिटी नेम दे देंगे आगे चल, ठीक है। यहाँ पे अपन सिटी नेम दे देंगे, जो ऊपर में यूजर एंटर कर रहा है ना, वो सेम चीज। और ये वाला, जैसे अगर नागपुर एंटर किया तो नागपुर आ जाएगा। और सिटी नेम, वेदर डिटेल्स फॉर सिटी नेम, और सिर्फ इतना पोर्शन मेरे को रेंडर करना है। सो आईडी देता हूँ इसको, आईडी इक्वल्स टू पेज ब्लॉक, आईडी इक्वल्स टू PG ब्लॉक, और उसको यहाँ पे री रेंडर करवा दूं। मतलब सारा का सारा रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, सारा का सारा रिफ्रेश ना होते हुए सिर्फ जो है आपका इतना ही रिफ्रेश होना चाहिए, इसीलिए री रेंडर, सारा का सारा रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, इसीलिए री रेंडर। और री रेंडर किसको करना है, तो री रेंडर करना है मुझे सिर्फ पेज ब्लॉक। तो आफ्टर हिटिंग दैट बटन पूरा का पूरा पोर्शन रिफ्रेश नहीं होने की वजह से सिर्फ इतना ही रिफ्रेश होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इस पेज ब्लॉक के अंदर, इस सेकंड पेज ब्लॉक के अंदर, सेकंड पेज ब्लॉक के अंदर में यहाँ पे अपन उसको प्रिंट करते हैं। तो WATHER वेदर डिटेल्स, मतलब टेम्पररी कर रहा हूँ, ये टेम्पररी काम है, ये टेम्पररी काम है। मुझे एक्चुअली देखना है कि रिस्पांस आया कि नहीं आया। तो रिस्पांस आया कि नहीं आया उसके लिए एक वेरिएबल में मैंने उसे स्टोर कर रखा है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू प्रिंट कर, इतना कोड पहले अपन सेव करते हैं, यहाँ पर भी इतना कोड सेव कर लेते हैं, ठीक है। कोई एरर है क्या, नहीं, चलो पहले हम देखेंगे कि API हमारी प्रॉपरली हिट हो रही है कि नहीं, ठीक है। API जो है वो प्रॉपरली हिट हो रही है कि नहीं। तो आपकी सब कुछ आपका सही है। आपका बैकएंड पे जो भी लिखा आपने, रिमोट साइट सेटिंग किया, आपने कस्टमर लेबल्स बनाए, और आपने फिर जो URL जनरेट करा, और URL जनरेट करने के बाद में जो कुछ भी किया, मतलब अभी तक अपना कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब बस अपने को इस जेसन को पार्स करना है, ये मिल गया, मतलब तुम्हारा 90% काम हो चुका है। कभी भी जब API हिट किया करो ना, तो ऐसे चेक कर लिया करो, कभी भी जब API हिट किया करो तो ऐसे चेक कर लिया करो। इवन विद द लास्ट प्रोग्राम एज वेल मैंने ये किया, मतलब मैं आपको बताना भूल गया, फिर बाद में जब मैं डिबगिंग कर रहा था तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन किया, टेम्पररी वेरिएबल। अब इसकी अभी इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मतलब अभी मैं ये जो वेरिएबल है इसकी जरूरत नहीं है मुझे। सो अब मैं इस कोड को वो कर दूंगा, मतलब इसको कमेंट कर दूंगा। बट ये हमेशा हम करके देख लेते हैं कि हमारी API प्रॉपरली हिट हो रही कि नहीं। कैसे आप बोल रहे हो मैं जेसन को पास करता, अरे आपको जेसन मिला कि नहीं पहले वो तो देख लो, ठीक है। आपको रिस्पांस मिला कि नहीं मिला, अगर रिस्पांस मिला है तो ठीक है, फिर अब मिल गया, अभी कंफर्म हो गया। अभी यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हाँ भैया अपने को रिस्पांस आ रहा है, API अपनी बहुत एकदम सही प्रॉपरली हिट हो रही है।
तो जब ऐसा हो रहा है तो फिर अपन रिस्पॉन्स को पास करने की बात करेंगे। अब रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो आप पास किसको करोगे, राइट? रिस्पॉन्स आया ही नहीं है तो पास किसको करोगे? तो ये हमेशा हर बार इसको इम्प्लीमेंट जब भी आप करते हो तो एक बार अपनी एपीआई हिट हुआ कि नहीं वो देख लिया करो। चलिए, अब इसके बाद में फिर व्हाट आई विल बी डूइंग इज लाइक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कि आई डोंट रिक्वायर दिस। ठीक है, चलो मुझे जो देखना था वो देख लिया मैंने। तो वंस यू गेट द रिस्पॉन्स, नाउ वंस यू गेट द रिस्पॉन्स, सर क्लास ले रहा हूँ मैं, करता हूँ। जी मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ, तो वंस यू गेट द रिस्पॉन्स अभी अपने को पास करना है, तो इसके बाद का जो कोडिंग है अपना वो एज इट इज है जो इसके पहले। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स, मतलब ये जो रिस्पॉन्स आया अपना काफी बड़ा रिस्पॉन्स है, बट एक्चुअली ना अपन इसको यहाँ से ही पास करेंगे, मेन से पास करेंगे। और अपन ना इसको कहाँ तक लिए, शायद ह्यूमिडिटी तक लिया है अपन, बस इतना इतना ही पोर्शन पास करते हैं, बाकी का पूरा डिस्कार्ड कर देते हैं फिलहाल। बट आप अपने प्रोग्राम में मतलब आप चाहो तो ये पूरा ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो पूरा ले सकते हो, बट मैं सिर्फ इतने को करूंगा पास, बिकॉज मैंने वेरिएबल भी उतने ही डिफाइन कर रखे हैं ना, उतने ही वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, चलो। सो now after this what we will doing, we will going to pass the JSON response received from the weather map API। तो हमको जो रिस्पांस मिला है, ठीक है, हम उसको पास करेंगे यार, राइट? वी विल पासिंग दैट कंटेंट, अभी अपन उसको पास करेंगे। तो जब आप पास करना चाहते हो तो पास करने के लिए आपको जो जेसन पार्सर क्लास है, जेसन पार्सर क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज जैसे इसके पहले भी किया आपने। सिस्टम डॉट जेसन पार्सर, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे कि डब्लू पार्सर इक्वल्स टू सिस्टम डॉट जेसन डॉट क्रिएट पार्सर। ठीक है, क्रिएट पार्सर, और यहाँ पे अपने को पूरी स्ट्रिंग देनी है, यहाँ पे देने की भी एक पास करना है, किसको करना है, तो वो पूरा अपना स्ट्रिंग यहाँ पर आता है, जैसा अभी आपने देखा कि वेदर मैप डॉट गेट बॉडी इसके अंदर है, तो उसको लेके पूरा यहाँ पे उठा के पटक दो। तुमको स्ट्रिंग चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसके अंदर चले जाओ, इसके अंदर चले जाओ, यहाँ से तुमको पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ये वाला, ये जो रिस्पॉन्स अभी अपना जनरेट हो गया है ना, ये पूरा रिस्पॉन्स गेट बॉडी के अंदर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में फिर जैसा अपन करते हैं नॉर्मल, इसके नॉर्मल है बिल्कुल, जो कोड अपन इसके बाद लिखते हैं अपन। ठीक है, हर बार जो अपना कोड रहता है एज इट इज, हर बार जो अपना कोड रहता है, सो वाइल वाइल डब्लू पार्सर, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है अपने डब्लू पार्सर। ठीक है, डॉट डब्लू पार्सर डॉट नेक्स्ट एनीवे, कोड को करता हूँ मैं, देखता हूँ। नेक्स्ट टोकन, ये यार, नेक्स्ट टोकन इज नॉट इक्वल्स टू नल, इज नॉट इक्वल्स टू, समझे, पुराने प्रोग्राम चलो। पार्सर सिस्टम डॉट जेसन डॉट क्रिएट पार्सर कर लिया, सिस्टम डॉट जेसन डॉट क्रिएट पार्सर, पार्सर नेक्स्ट। हर बार कुछ नया ही दिखता है इसमें, इलीगल स्टेटमेंट सिस्टम डॉट जेसन पार्सर,
सिस्टम डॉट जेसन टोकन, सिस्टम डॉट जेसन टोकन, यहाँ मिस्टेक है यार। सिस्टम डॉट जेसन, जेसन टोकन नहीं है वो, जेसन पार्सर है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट टेकिंग। सिस्टम डॉट जेसन पार्सर तभी नहीं आ रहा। इलीगल स्टेटमेंट थी, मैं जेसन टू मतलब ये एरर देख के समझ में आ गया मुझे, सिस्टम पार्सर से टोकन पे जा रहा हूँ। दैट्स व्हाई इट वाज नॉट टेकिंग। अभी ये बराबर ले लेगा। दैट्स व्हाई इट वाज नॉट टेकिंग। सो while while w parser dot next token, देखो ठीक है। सो आई वाज कमिटिंग दैट मिस्टेक, मेरी वजह से था। यहाँ पर जेसन पार्सर चाहिए था, मैंने जेसन टोकन पता नहीं कैसे ला दिया था। ठीक है, जादू हो गया था वहां पे। सो इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू नल, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू नल मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, आई एम पार्सिंग दिस कंटेंट। ठीक है, आई एम पार्सिंग दिस कंटेंट। अच्छा, अब मैं जैसा आपको बताया कि वी आर इंस्टेड ऑफ पार्सिंग दैट होल कंटेंट, आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज दिस, आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम द मेन। ठीक है, मैं मेन से शुरू कर रहा हूँ उसको। सो w parser dot नेक्स्ट टोकन, सबसे पहले यू रिक्वायर गो टू, यू शुड रिक्वायर टू गो टू द नेक्स्ट टोकन। आपको हर बार नेक्स्ट टोकन पे जाना है, मतलब आप भले ही शुरुआत से शुरू करोगे इसको, यू विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम दिस वेदर डिटेल्स, लेकिन हर बार आपको नेक्स्ट टोकन चाहिए। हर बार आपको नेक्स्ट टोकन चाहिए तब तक, ठीक है, तब तक जब तक कि आपको मेन ना मिले। तो व्हाट आई विल डू, इसको इसको नीचे लेते हैं, इसको नीचे लेते हैं। हाँ, तो ये हर बार नेक्स्ट टोकन लाएगा। तो इफ लाइक ये कंडीशन में यहाँ दे रहा हूँ, इफ w parser डॉट गेट करंट टोकन, ठीक है, करंट टोकन इक्वल्स टू जेसन टोकन डॉट फील्ड नेम। ठीक है, जेसन टोकन डॉट फील्ड नेम मतलब पहला जो है, जैसे इट विल ट्राइंग टू पास द फर्स्ट थिंग, इसको पास करेगा और देखेगा क्या ये फील्ड नेम है। तो ये सब कुछ वो तो फील्ड नेम है, फील्ड नेम है, लेकिन साथ ही साथ क्या, क्या उसकी जो वैल्यू है, क्या उसकी जो वैल्यू है। सो w parser डॉट गेट टेक्स्ट, क्या जो उसकी वैल्यू है, क्या इक्वल्स टू मेन है वो, क्या इक्वल्स टू मेन है। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, जब तक ऐसा नहीं आता, जब तक ऐसा नहीं आता, जब तक ऐसा नहीं आता, next होगा। तो अभी क्या होगा, बेसिकली इट विल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट करेगा उसको, यहाँ से स्टार्ट करेगा। लेकिन क्या वो ऐसा नया टोकन है क्या, क्या इफ इट इज इक्वल टू मेन है क्या, यहाँ पे लिखा है वेदर डिटेल और यहाँ लिखा है मेन, तो नहीं, तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा, फिर ये तो स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ये आएगा, ऐसा चलता रहेगा। फिर एक जगह ये मेन आएगा। ठीक है, एक जगह क्या आएगा, ये मेन आएगा, मेन आएगा। ठीक है, आने दो, यहाँ पे थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन हो सकता है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, इसके बाद में क्या कोड कर रहा हूँ वो देखो। उसके बाद में मेन के बाद में फिर नेक्स्ट टोकन बोला मैंने, नेक्स्ट टोकन यहाँ लिखा हुआ हेज, यहाँ क्या लिखा हुआ हेज। ठीक है, वो एक वैल्यू है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे हिसाब से मेन के बाद में क्या आता, मेरे हिसाब से मेन के बाद में क्या आता है, एक स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओपनिंग ब्रैकेट है ना, देखो मैं इस मेन की बात कर रहा हूँ, मैं इस मेन की बात कर रहा हूँ। तो भले ही तुम यहाँ पे आके फंस गए, कोई बात नहीं, अभी उसको भी क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है, उसको भी क्लियर करता हूँ। तो डब्ल्यू पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन, चलो आपको मेन मिल गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, आपको मेन मिल गया। अब नेक्स्ट टोकन पे आ जाओ, अब नेक्स्ट टोकन पे आ जाओ। ठीक है, अब कहाँ आ जाओ, आप नेक्स्ट टोकन पे आ जाओ। और नेक्स्ट टोकन पे आने के बाद, नेक्स्ट टोकन पे आने के बाद में नाउ इफ डब्ल्यू पार्सर, इफ डब्ल्यू पार्सर नेक्स्ट टोकन पे आने के बाद डॉट गेट, गेट करंट टोकन, अब जो जिस टोकन पे हो उसको लो। इफ इट इज इक्वल्स टू इफ इट इज इक्वल्स टू जेसन टोकन डॉट स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ इट इज इक्वल्स टू स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ से कंफ्यूजन खत्म होता है। तो जैसे उसको मेन मिला, मेन मिलने के बाद में हमने क्या कंडीशन डाली कि चलो मेन मिल गया, अब आप नेक्स्ट टोकन पे आ जाइए। अब आप नेक्स्ट टोकन पे आ जाओ, तो नेक्स्ट टोकन पे आ जाएगा वो हेज पे आ जाएगा। फिर हमने कंडीशन डाल रखी कि गेट द करंट टोकन, करंट टोकन की वैल्यू लो, तो करंट टोकन की वैल्यू आ रही है हेज। क्या ये कोई स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या ये स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ कंडीशन हो जाती है फॉल्स, नहीं स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं है तो फिर से आगे बढ़ जाता हूँ, फिर से ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन पे जाएगा, फिर हेज पे जाएगा, चलते 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 फाइनली उसको मिलेगा मेन।
ठीक है, फाइनली उसको मिलेगा मेन। ठीक है, अब जब उसको मेन मिला, मेन मिलने के बाद में फिर से कंडीशन फिर से रिवाइज होती है, मेन मिल गया। अब नेक्स्ट टोकन पे आ जाओ, नेक्स्ट टोकन पे आ गए। नेक्स्ट टोकन कौन सा, ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, जिसको हम स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर बोलेगा कि गेट द करंट टोकन, गेट द करंट टोकन भी मिल गया। और क्या करंट टोकन की वैल्यू स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो अब इसी कंडीशन होती है ट्रू। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का जो भी कंडीशन है ना, वो पूरा डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, वो पूरा तुम्हारा डिस्कार्ड हो जाता है इस तरह से। तो इसको ऐसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसको बेसिकली ऐसे मैनेज किया जाता है। अब यहाँ से आगे चल तो अपन टाइम फ्रेम जो भी है वो सब कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो, तो अगर यहाँ तक पहुंच जाते हो, आप यहाँ तक पहुंच जाते हो, मैं आप स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया, सबसे पहले नेक्स्ट टोकन, सबसे पहले नेक्स्ट टोकन, उसके बाद नेक्स्ट टोकन, उसके बाद अब इफ 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 डब्ल्यू पार्सर डॉट गेट करंट टोकन, गेट करंट टोकन वो फील्ड नेम है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, टेम्प, टेम्प यानी फील्ड नेम है ना, इज इक्वल्स टू जेसन टोकन डॉट फील्ड नेम। तो जेसन टोकन डॉट फील्ड नेम, वो फील्ड नेम है, पहली बात तो वो फील्ड नेम है। और अच्छा, फील्ड नेम भी है तो क्या, तो गेट गेट टेक्स्ट, उसकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है टेम्प। इसको मैंने कॉपी मारा, टेम्प, उसकी वैल्यू टेम्प है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको उसकी वैल्यू चाहिए। तो डब्ल्यू पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन, उसके आगे बढ़ना है, उसके आगे बढ़ना है, मतलब अब ये वाली 311.16 ये वैल्यू चाहिए अपने को। तो ये वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको पहले तो नेक्स्ट टोकन पे आ जाता हूँ, है ना। नेक्स्ट टोकन पे आ जाने के बाद में अब हम उसको हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, ये एवरेज वाला है ना, एवरेज वाला है, पहला है एवरेज टेम्परेचर, यहाँ पे मेरे को स्टोर करने का, यहाँ पे मेरे को उसको स्टोर करने का। सो एवरेज टेम्परेचर इक्वल्स टू, ठीक है। हाँ, अब देखो वो कैसा है, वो केल्विन में है, तो उसको ना अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है एक बार देख लेता हूँ। केल्विन सेल्सियस, केल्विन टू सेल्सियस मतलब जैसे अगर 1 डिग्री केल्विन है, 0 डिग्री केल्विन है, तो माइनस माइनस 273.15, ठीक है, -273.15 है, ये उसका फॉर्मूला है अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अपन एक काम करते हैं कि जो भी एवरेज, पहले तो वैल्यू ले लेते हैं, पहले तो उसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, और वैल्यू डेसिमल में है तो, वैल्यू डेसिमल में है तो ये पार्सर, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, डॉट गेट डेसिमल, गेट डेसिमल, ठीक है। वो वैल्यू इसमें है ना, मतलब पॉइंट वाली है, इसलिए गेट डेसिमल। तो ये वैल्यू मिल गई, दैट माइनस, ठीक है, ये वैल्यू को माइनस करो, कितना माइनस करना है, 273.15 होता है क्या, अरे वाह क्या बात है, 273.15 उसमें माइनस कर दूंगा, तो अब ये मिल गया मेरे को डिग्री सेल्सियस में। तो उसके आगे अपन ऐसा लिख देते हैं ना, प्लस प्लस सी, कैपिटल सी, या डिग्री सेल्सियस, मतलब समझने के लिए कि ये जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में। ओके, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद इसके बाद फिर अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके बाद अब फिर से इसके बाद फिर से फील्स लाइक पे जाने का है, नेक्स्ट टोकन लगेगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद नीचे आने के बाद में सबसे पहले आप नेक्स्ट टोकन पे जाओ, डब्ल्यू पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन, ठीक है, डब्ल्यू पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन पे जाओ। और नेक्स्ट टोकन पे जाने के बाद फिर वही कोड अपन रिपीट करेंगे कि अब ये जो है ये क्या है। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, अब इसके बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए भी। नेक्स्ट टोकन, उसके बाद में फिर मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप गेट करंट टोकन वैल्यू लो, जो कि फील्ड नेम है। और अगर बाय द वे वो फील्ड नेम है, तो फील्ड नेम है तो वो कैसा दिखता है, मैंने ये फील्ड्स लाइक को, ठीक है, ये फील्ड्स लाइक को कॉपी किया। ये नेम एग्जैक्ट होना चाहिए, बरा ये नेम आपके मैच होने चाहिए, एग्जैक्ट मैच होने चाहिए, वरना आपका पार्सर काम नहीं करेगा। इसलिए बेटर ये है कि ये हमेशा रिस्पॉन्स में से ही कॉपी करो, जो भी रिस्पॉन्स आया। अगर इसमें जरा सा भी आप ये अंडरस्कोर भी छोड़ दोगे ना, तो ये उसको अज्यूम कर लेगा कि ये दूसरी स्ट्रिंग है, राइट। तो अब फील्स लाइक ये वाला टेम्परेचर आ रहा है, गेट का गेट डेसिमल वैल्यू,
उसके बाद उसको जब अपन माइनस कर रहे हैं तो अपन उसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जिसका नाम है फील्ड्स लाइक। उसके लिए भी एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। तो फील्ड्स लाइक के लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, उसका नाम है फील्ड्स लाइक। उसमें ये वैल्यू लूंगा मैं, और वही डेसिमल वैल्यू है, तो उसको फिर कन्वर्ट, उसको आई मीन उसको माइनस कर देंगे 273, और उसके भी आगे सेल्सियस लगा देंगे। चलो, ये भी हो गया। उसके बाद फिर से हमको ये इतना पूरा ही क्वेश्चन कॉपी कर लेता है। उसके बाद फिर से डब्ल्यू पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन, डब्ल्यू पार्सर डॉट नेक्स्ट टोकन, उसके बाद में आप फील्ड नेम लो, ठीक है। और फील्ड नेम अब क्या होनी चाहिए, फील्ड नेम आपकी होनी चाहिए टेम्प मिन। अगर ये की फील्ड नेम है, इफ योर फील्ड नेम इज टेम्प मिन, तो एक तो नेक्स्ट टोकन पे आ जाइए, ठीक है। पहले नेक्स्ट टोकन पे आओ। नेक्स्ट टोकन पे आने के बाद में जो है, आप उसको उसकी वैल्यू लो, वैल्यू लो गेट डेसिमल, उसमें भी -273 करो। और ये जो है स्टोर करना है अपने को, उसके लिए एक वेरिएबल हमने बना रखा है जिसका नाम है मीन टेम्परेचर, ठीक है। मीन टेम्परेचर, तो इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ मीन टेम्परेचर में, ठीक है। इसको स्टोर कर रहा हूँ मीन टेम्परेचर। अब देखो कोड कितना आसान हो जा रहा है आपका धीरे धीरे करके। एरर बता रहा है, क्या? कंपैरिजन आर्गुमेंट मस्ट बी कंपैटिबल स्ट्रिंग टू जेसन, स्ट्रिंग सिस्टम डॉट जेसन टू कंपैरिजन। पार्सर डॉट गेट करंट नेम, गेट करंट नेम नहीं चाहिए, गेट करंट टोकन चाहिए। गेट करंट नेम आया यहाँ, दैट इज वाई यहाँ पे भी गेट करंट टोकन, गेट करंट, ठीक है। लेट मी सेव दिस, ठीक है। ओके, तो कहाँ तक पहुंचे अपन, मिनिमम टेम्परेचर तक पहुंच गए हैं। और मिनिमम टेम्परेचर के बाद क्या आता है वैसे, मैक्स टेम्परेचर, मैक्स टेम्परेचर, राइट, ठीक है। तो यही कोड मैं फिर से कॉपी करता हूँ, इतना कोड फिर से कॉपी करता हूँ, और इसको मैं इसके नीचे लाके पेस्ट करता हूँ, इसके नीचे लाके पेस्ट करता हूँ। और अब मैं कहता हूँ कि जो नेक्स्ट वैल्यू है, इट इज दिस वैल्यू। तो इसके लिए भी फिर हमें काम, हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है मैक्स टेम्परेचर के नाम से, कि मैक्स टेम्परेचर के नाम से मैं इस वैल्यू को कैप्चर करता हूँ और मैक्स टेम्परेचर पे स्टोर कर देता हूँ। मैक्स टेम्परेचर, आफ्टर मैक्स टेम्परेचर अब शायद प्रेशर वगैरह है, तो वो देख लेते हैं। चलो, तो प्रेशर है तो गेट, गेट डेसिमल नहीं आएगा, फिर प्रेशर है तो फिर आपको गेट वैल्यू पे लेना पड़ेगा, गेट टेक्स्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले इतना तो कोड आप कॉपी करो, जो भी चेंजेस करने छोटे मोटे वो हम कर लेंगे। इसके बाद मैं फिर से बोलता हूँ कि अब आप नेक्स्ट टोकन पे चलिए, और नेक्स्ट टोकन के बाद करंट फील्ड नेम लीजिए। करंट फील्ड नेम जो है, अगर ये आपको मिल रहा है प्रेशर, अगर ये मिल रहा है प्रेशर, फिर से आप नेक्स्ट टोकन पे आ जाइए। अब प्रेशर की जो वैल्यू है, ठीक है, प्रेशर की जो वैल्यू है 10, इसको स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है, प्रेशर वैल्यू गेट टेक्स्ट से ले सकते हैं इसको, गेट टेक्स्ट से, गेट डेसिमल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गेट टेक्स्ट से ले सकते हो आप उसको, प्रेशर की वैल्यू गेट टेक्स्ट। चलो ठीक है, एरर आया तो फिर कुछ और मैनेज करूंगा। अभी तो मैं उसको गेट टेक्स्ट में लेके देख लेता हूँ, ह्यूमिडिटी भी, ठीक है। मैं देखता हूँ गेट टेक्स्ट में, अगर अगर एरर आया तो फिर मुझे ऑफकोर्स यहाँ पे आके कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये वैल्यू जो स्टोर करनी है, ये वैल्यू स्टोर करने एक वेरिएबल बनाए हमने प्रेशर नाम से। अरे यार, क्या करूं, प्रेशर नाम से एक वेरिएबल बनाया है, ये वैल्यू मुझे यहाँ पे स्टोर करनी है। प्रेशर इक्वल्स टू आपका डब्ल्यू पार्सर डॉट, डब्ल्यू पार्सर डॉट गेट बूलियन करंट डेसिमल वैल्यू गेट टेक्स्ट। टीचर नहीं होती इसमें,
टीचर नहीं होती और वो वैल्यू डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है ना उसमें, मतलब ये जो वैल्यू मैं देख रहा हूँ इसमें पॉइंट नहीं है। पॉइंट रहेगा तो अपन डेसिमल फॉर श्योर है, पॉइंट नहीं है तो अभी डेसिमल फॉर्म में है या नहीं है, इंटीजर वैल्यू है। गेट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेके देख। लेकिन एक चक्कर आएगा, इसको फिर स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हुआ है, इसको स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हुआ है तो ये, या तो पब्लिक इंटीजर इसको करो, ठीक है, एक काम करते हैं, रुको, इसको पहले अपन इसी को मॉडिफाई करते हैं, गेट, गेट टेक्स्ट। अगर नहीं लेगा तो फिर दो जगह मैं चेंजेस करूँ, एक तो मैं इसको इंटीजर बनाऊंगा और यहाँ जो प्रेशर वेरिएबल है उसको भी इंटीजर बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ मैनेज करने का स्ट्रिंग से, अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को ऑफकोर्स यहाँ पर आके चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर ये वैल्यू मेरे को नहीं आई तो। ये पहली वैल्यू हो गई, ठीक है, ये पहली वैल्यू हो गई। इसी तरह दूसरा अपना ह्यूमिडिटी वाला बचा है, तो गेट नेक्स्ट ऑप्शन, उसके बाद में आता है आपका ह्यूमिडिटी। ये दो को लेके थोड़ा सा डाउट है मेरे को, क्या होगा तो अपन देखते हैं आगे चल के। और इसलिए जो वेरिएबल अपने डिफाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल का नाम भी, वेरिएबल का नाम भी है आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है। ठीक है, चलो इतना कोड कंपाइल करते हैं पहले, यहाँ से सेव हो गया है, अब यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, कोड करके यहाँ पर जाना चाहिए आइडियली। ये एज इट इज है, ये एज इट इज, यहाँ पर भी आ गया। हाँ, अब यहाँ पे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, ये नीचे के लिए, नीचे जो पोर्शन है अपना उसके लिए टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे लास्ट टाइम भी किए थे अपन ने टेबल क्रिएट किए थे, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी अपने को उसके लिए टेबल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि अपन टेबल में और वो कॉलम की वैल्यूज के साथ में उसको डिस्प्ले कर पाए, टेबल में और कॉमन कॉलम की वैल्यूज के साथ। सो बस हो ही गया, थोड़ा सा हाथी तो निकल गया, पूंछ बची है सिर्फ, ये हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। देखो ये तरीका है, जब भी आप कमेंट देते हो ना तो मतलब विजुअल फोर्स पेज पे तो आपको कमेंट इस तरह से देनी पड़ती है, ठीक है, कमेंट जो है इस तरह से देनी पड़ती है विजुअल फोर्स पेज पे। यहाँ पर वो डबल स्लैश या फिर स्टार एस्ट्रिक वो सब नहीं चलता, यहाँ पे कमेंट देने का तरीका ये है, ठीक है। सो हट गया, ठीक है, पेज ब्लॉक बना लिया है, वेदर डिटेल्स फॉर, इसी के अंदर अब पेज ब्लॉक सेक्शन क्रिएट करता हूँ, अपेक्स पेज ब्लॉक सेक्शन, ठीक है, अपेक्स पेज ब्लॉक सेक्शन, टाइटल इक्वल्स टू द वेदर, वेदर डिटेल्स सेक्शन, ठीक है, वेदर डिटेल्स सेक्शन। उसके बाद में कॉलम्स दो रखते हैं, एंड देन कोलैप्सिबल फॉल्स, कोलैप्सिबल फॉल्स, ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज काफी है। ओके, अब इसके अंदर ना टेबल बनाना है, ठीक है, इसके अंदर ना अपने को टेबल बनाने का, तो और एल्स टेबल नहीं बनाते हैं, टेबल, टेबल भी बना सकते हैं, एक दूसरा सीख लो कुछ, मतलब वो उस प्रोग्राम में टेबल बनाया है तो इस प्रोग्राम में कोई दूसरा दूसरा तरीका सिखा देता हूँ फिर, मतलब टेबल तो है आपके पास में, कोड तो है टेबल का, अपेक्स आउटपुट लेबल का यूज करना सिखा देता हूँ, अपेक्स आउटपुट लेबल, अपेक्स आउटपुट लेबल, ठीक है। सो अपेक्स आउटपुट लेबल एंड बोल्ड में दिखाना है, इसीलिए HTML ले रहा हूँ बोल्ड, बी, बी स्टैंड फॉर बोल्ड, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू कौन सी है अपने प्रोग्राम में, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर इक्वल्स टू, here I would like to give the value, here I would like to give the value, so like this, and average temperature,
वो जो वेरिएबल है, वो जो वेरिएबल है हमारा, उसी को मैंने किया। एंड बोल्ड बाय बोल्ड, बाय बोल्ड बाय बोल्ड, ये वैल्यू आपको बोल्ड पे आ जाएगी। एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, थोड़े बहुत यहाँ मॉडिफिकेशन, एवरेज टेम्परेचर काम कर रहा है ना, इतना ही देखना था। सो कॉपी एंड पेस्ट। एवरेज टेम्परेचर के बाद अगली वैल्यू है आपकी फील्स लाइक। यहाँ पे आपको वैल्यू दिखानी है फील्स लाइक। जितना हो सके टाइपिंग एफर्ट बचाने की कोशिश करता हूँ, और कुछ नहीं। जितने पैरामीटर्स है फील्स लाइक के बाद, 1 2 3 4, एक हो गया, 2 3 4, ठीक है। आफ्टर फील्स लाइक इट इज मिनिमम टेम्परेचर, सो आफ्टर फील्स लाइक इट इज मिनिमम टेम्परेचर, minimum temperature, and after minimum temperature it's like maximum temperature, maximum temperature, here also maximum temperature, maximum temperature, and after maximum temperature it's pressure, so pressure, यहाँ पर भी pressure, pressure and pressure humidity, बस इतना ही है, हो गया। कोड तो ऑलमोस्ट हो गया अपना। ह्यूमिडिटी, चलो एक बार देख लेता हूँ कुछ गड़बड़, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर इक्वल्स टू एवरेज टेम्परेचर feels like, feels like why there is comma, no need of comma, comma की जरूरत नहीं है सभी जगह। here also, okay, now say ठीक है, ठीक है, ओके। और इधर में एक्शन भी दे दिया, री रेंडर भी दे दिया, और नीचे में सब ठीक है। चलो अभी ठीक तो दिख रहा है। अब चलो कोड को चेक करते हैं। सो नागपुर, शो दी वेदर कंडीशंस, गजब, क्या बात है, आ गया, ठीक है। सी, तो अरे बाप रे, एवरेज टेम्परेचर पास, फॉर्मूले गलत हो गए। फॉर्मूले गलत हो गए, हाँ, फॉर्मूला गलत हो गया। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर देखो इतने डिग्री सेल्सियस, तो मर जाएगा इंसान। फॉर्मूले में गड़बड़ किया तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस ही तो किया मैंने। एक बार जरा चेक कर, फॉर्मूले गलत कर दिया दिस वेल, अरे फॉर्मूले में गड़बड़ है। ऊपर पता नहीं कैसे आ गया माइनस, यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। इसको फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा। that's why, अरे ये स्पेलिंग आ गया, ठीक है। 32 डिग्री एवरेज टेम्परेचर, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, और कोई जैसे कि पुणे की वैल्यू देखना है आप, शो वेदर कंडीशंस, ये पुणे, तो अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली लेता है कि न्यू दिल्ली लेता है पता नहीं है,
दिल्ली की वैल्यू लिया है इसने। तो दिस इज व्हाट, ये है आपका रियल टाइम इंटीग्रेशन बॉस। दिस इज योर रियल टाइम इंटीग्रेशन। इस तरह से आप बना सकते हो वेदर मैप, वेदर एप्लीकेशन और पोस्टल एपी नेट। दो मेजर चीजें थी, दोनों मैंने कवर करवा दिया। अभी जो सिखाया है वो क्या सिखाया है और अगला लेक्चर में क्या सिखाने वाला, दोनों देख लो। इंटीग्रेशन को थोड़े ही दिन बचे हैं, उसके बाद मैं डिप्लॉयमेंट शुरू करने वाला हूँ। अभी मैंने आपको ये सिखाया कि आप यहाँ पर हो, दिस इज यो, आप सेल्स फोर्स में हो, एंड देन यू आर हिटिंग, जैसे आप हिट कर रहे हो पोस्टल मैप को, आप हिट कर रहे हो पोस्टल मैप को और वो पैरामीटर को आप ले रहे हो। तो हियर एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंज्यूमिंग, यू आर कंज्यूमिंग, आप एक कंज्यूमर हो, यू आर एक्टिंग एज अ कंज्यूमर। यहाँ पर आप पैरामीटर्स को सेंड कर रहे हो एंड देन इन पैरामीटर सेंड करने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। इन बोथ ऑफ द केसेस, इन बोथ ऑफ द केसेस लाइक यू आर डूइंग द सेम थिंग। जैसे आपका पहला था पोस्टल वाला, दूसरा अपना ये वेदर मैप। तो वेदर मैप में भी मैंने वो सारे एंड पॉइंट यूआर वो सारा, मतलब मैं एक अच्छा खासा यूआरएल बना के इसको भेजता हूँ, मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ इसको, ये मेरे को रिस्पॉन्स सेंड करता है एंड वी आर कंज्यूमिंग, वी आर कंज्यूमिंग। अब अभी अभी इसका नेक्स्ट क्या रहेगा, इसका नेक्स्ट क्या रहेगा, एक तो हो गया कंजम्पशन, कंजम्पशन के आगे क्या रहेगा। तो अब हम कंजम्पशन के आगे क्या रहेंगे कि ये हमारी पहली चीज हो गई कि हम सेल्सफोर्स से दूसरों से पैरामीटर मांगते हैं। समझो आप इंटीग्रेशन टू वे प्रोसेस है। अभी आपने आधा ही पढ़ा है इंटीग्रेशन, ठीक है, अभी आपने आधा ही पढ़ा है। फिर आप जहां पर आप कंज्यूमर थे, अब आप क्या होगा इसके नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में यू वुड लाइक यू नो कि जैसे कि अभी ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहेगा, कोई भी एक एप्लीकेशन, ठीक है। और जैसे ये बोलता है कि मेरे को आप अकाउंट की डिटेल लाके दो, मतलब अकाउंट्स की डिटेल चाहिए, मैं आपको जैसे एक अकाउंट नेम ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक अकाउंट का नाम दे रहा हूँ सोहेल, ठीक है, मैं आपको एक नाम दे रहा हूँ सोहेल। तो अब ये थर्ड पार्टी सिस्टम हमको रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। इसके पहले हम ऐसा नहीं करते, ये अपना सेल्स फोर्स है, अभी अपन कंज्यूमर थे, अब अपन इसके बाद नेक्स्ट अपन बनेंगे प्रोवाइडर, ठीक है, हम बनेंगे प्रोवाइडर। इसके पहले जो थर्ड पार्टी था जैसे वेदर मैप या आपका पोस्टल पिन कोड, वो प्रोवाइडर था वो प्रोवाइडर था, आप कंज्यूमर थे, राइट। अब इसका नेक्स्ट क्या है, तो इसका नेक्स्ट ये है कि आप बनेंगे प्रोवाइडर और ये बनेगा कंज्यूमर। तो ये आपको रिक्वेस्ट करेगा, ये आपको रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मैं आपको एक भेजता हूँ, मतलब अकाउंट भेज रहा हूँ मैं सोहेल नाम से, तो सोहेल नाम से जितने भी अकाउंट है वो सारी डिटेल्स आप मेरे को वापस भेजो। तो आपका थर्ड पार्टी जो है ना वो बनेगा कंज्यूमर और आप बनोगे प्रोवाइडर। तो ये दोनों इंटीग्रेशन कैसा है, टू वे प्रोसेस है। देखो अभी तुमने आधा सीखा, तुमने कंज्यूम करना सीखा, अब तुम प्रोवाइड करना सीखोगे, सेल्स फोर्स में से प्रोवाइड करके दो। उसके लिए अपने को जाना है एपीआई लिखने की तरफ, एपीआई कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। ये रहेगा अपना नेक्स्ट टॉपिक। मैं कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल इसके भी ले लेता हूँ ताकि वो भी क्लियर हो जाए। अच्छा, एक दूसरी बात और, अभी इसके लिए मैं दो तरीके से सिखाने वाला हूँ तुमको, ठीक है, दो तरीके से सिखाने वाला हूँ मैं। एक तो रहेगा अपना वर्क बेंच, ठीक है, एक मैं वर्क बेंच से सिखाने वाला हूँ। तो एक तो ये वाला जो यूआरएल है वर्क बेंच वाला, ये मेरे को चाहिए कि ये यूआरएल तुम सभी लोग 01, ये यूआरएल जो है इसे काय को ईद मुबारक दे रहे थे, कल है ईद। तो 201 जो है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये यूआरएल जरा सा तुम लोग इसको सर्व करो और जैसे ही तुम ये यूआरएल टाइप करोगे तो ऐसा कुछ ओपन होता है, इसको ना बुक मार्क करके रख लेना स्टार यहाँ पर। तो बुक मार्क जब भी करते हो तुम तो ये तुम्हारे एक नीचे में जो स्क्रिप्ट रहती है वहाँ पे ये आ जाता है। जैसे यहाँ पर वर्क बेंच है मेरे पास में, है ना, ये सब जो जो भी मैं फ्रीक्वेंटली सर्व करता हूँ वो सारे मैंने बुक मार्क कर रखे हो। तो एक तो ये करके रखो सबसे, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको दो चीजें सिखाने वाला हूँ, ठीक है, दो चीजें। दूसरा है पोस्टमैन टूल, ये सभी लोग इंस्टॉल करो, ओपन सोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, बस ये आपके क्रेडेंशियल्स लेता है जैसे कि शायद जीमेल के या कुछ ऐसा, है ना। ये पोस्टमैन टूल ये दो इंस्टॉल करके रखो, ये आज हो जाना चाहिए, ये आज हो जाना चाहिए, कल तो क्लास नहीं रहेगी लेकिन परसों, परसों में लूंगा, ठीक है। पोस्टमैन कोई नहीं सिखाता, आई एम टेलिंग यू, पोस्टमैन कोई भी नहीं सिखाता, सब कोई वर्क बेंच से सिखाते हैं। रियल टाइम पे वर्क बेंच यूज 90% नहीं होता है, रियल टाइम पे 90% पोस्टमैन यूज होता है, 100% पोस्टमैन होता है, जब तक कोई कस्टमाइज टूल नहीं है किसी के पास। कभी कभी क्या होता है, एक चीज और समझो, क्या है, ये ओपन सोर्स है। मैंने आपको काफी पहले कहा था कि ओपन सोर्स यूजुअली कंपनी में यूज नहीं करते हैं, कई कंपनी में नहीं करते हैं, तो उनके पास खुद का अपना एक लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर रहता है।
ठीक है, इनके पास अपना खुद का एक लाइसेंस वर्जन एप्लीकेशन रहता है, लेकिन अगर आपने पोस्टमैन यूज कर लिया ना, तो आप दूसरा कोई भी लाइसेंस वर्जन एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है बेसिकली। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो पोस्टमैन एप्लीकेशन अगर आपने यूज कर लिया ना, तो फिर आप कोई भी लाइसेंस वर्जन जो भी एप्लीकेशन है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। ये दो चीज बेसिकली, ये दो चीज ना मैं चाहता हूँ कि आप करके रखो सभी लोग, क्योंकि इसके बाद जो मैं नेक्स्ट सिखाने वाला हूँ, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट सिखाने वाला हूँ उसमें अपने को लग रहा है। ठीक है, उसमें अपने को लग रहा है। इसकी जरूरत। एक तो पोस्टमैन करके रखो और दूसरा वर्क बेंच। वर्क बेंच आपको सिंपली एज अ बुक मार्क यू रिक्वायर टू ऐड दिस ऑन टू योर ब्राउजर, नथिंग एल्स। ठीक है, आपको एज अ बुक मार्क इसको ऐड करके रख लेना है। दूसरा पोस्टमैन आई वांटेड यू टू इंस्टॉल इट। दो चीजों से मैं सिखाऊंगा आपको। पोस्टमैन बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टमैन। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, वी वुड बिकम प्रोवाइडर एंड थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज, जिसमें हम पोस्टमैन अज्यूम करेंगे, थर्ड पार्टी को पोस्टमैन अज्यूम करेंगे। सो पोस्टमैन विल गोइंग टू रिक्वेस्ट अस एज अ थर्ड पार्टी वेब सर्विस, एज अ थर्ड पार्टी वेबसाइट। हम जो रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे या तो हम वर्क बेंच से करेंगे और प्लस, या फिर वही सेम रिक्वेस्ट हम पोस्टमैन से करेंगे। ये रिक्वेस्ट करेगा, दिस बिकम्स द आई मीन दिस बिकम्स द कंज्यूमर एंड वी विल एक्ट एज अ प्रोवाइडर। और हम सेल्स फोर्स से जो भी उसने पैरामीटर भेजा उसके हिसाब से हम उसको रिस्पॉन्स भेजेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको रिस्पॉन्स भेजेंगे। सो वी वुड बिकम प्रोवाइडर एंड दैट थर्ड पार्टी वुड बिकम कंज्यूमर। अभी इसका उल्टा गणित कर रहे थे, अभी हम लोग कंज्यूमर थे इन द सेल्स फोर्स। इन द सेल्स फोर्स वी वेर सेंडिंग द पैरामीटर्स, हमने सेंड किया पैरामीटर, जैसे हमने सेंड किया उसको हमारे इंडियन पोस्टल कोड को, या फिर हमने वेदर मैप को सेंड किया। ठीक है, तो दैट वाज एक्चुअली प्रोवाइडर, उसने हमको प्रोवाइड किया एंड वी बिकम कंज्यूमर, क्योंकि उसने जो हमको प्रोवाइड किया वो हमने कंज्यूम किया। ठीक है, तो एक तो ये है और दूसरा ये प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा ये प्रोसेस है। ठीक है? तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कॉल आउट। एक मिनट, एंड करने से पहले इसको बोलते हैं कॉल आउट करना। व्हेन यू आर कॉलिंग, जब तुम दूसरे को आवाज दे रहे हो, दूसरे को पैरामीटर सेंड कर रहे हो, अब बोले भैया कुछ भेज, एंड दिस इज समथिंग कॉल इन। जब आप एक्चुअली मैनेज कर रहे हो, किसी ने आपको रिक्वेस्ट किया, इनकमिंग कॉल है, इनकमिंग कॉल है, तो उसको आप कैसे, तो यहाँ पर आपको ये अगर डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, तो आप सिंपल ये देखो कि थर्ड पार्टी से, जैसे आपने फर्स्ट, ये आपका जो पहले चीज, आपने थर्ड पार्टी को सेंड किया, आपने थर्ड पार्टी को सेंड किया तो उसने रिस्पॉन्स किया, तो इन्हीं सबसे पहले क्या हुआ, सेंड करना। तो आपने सेंड किया है मतलब आपने कॉल किया है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कॉल आउट। थर्ड पार्टी ने आपको कॉल किया, आपने रिसीव किया, तो उसको बोलते हैं कॉल इन। ठीक है, ये दोनों चीजें आनी चाहिए तुमको, कॉल आउट और कॉल इन। तो वो दोनों पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा जाता है, क्योंकि मैं एक तो दोनों कवर कर रहा हूँ, दूसरा मैं तुमको पोस्टमैन भी सिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा जाएगा, अदरवाइज ऐसा है। ठीक है, चलो, तो कल छुट्टी है, परसों का टाइमिंग जो है, परसों तो इवनिंग से ही टाइम रहेगा। बस अब रमजान खत्म हो गया तो परसों से इवनिंग में रहेगा। टाइम बताता हूँ, प्रॉबेबली 6 to 7 जो अपना टाइम हुआ करता था यूजुअली, मोस्ट प्रॉबेबली वही टाइम रहेगा, 6 to 7।